Okay. Now, binomial distribution, come to page 245. First, mark the statement dichotomous. Dichotomous, यानी dichotomous means if I'm tossing a coin, the probability is either you get a head or you get a tail. There are only two options. Either you get a head or you get a tail. That is called as dichotomous. Okay. So whenever you have two options like a head or tail, it is called as dichotomous. Okay. For example, if I ask a question, either the answer is true or a false. That is called as dichotomous. Okay. If I take a bulb and put it in a socket, either the bulb is working, defective or non-defective. Okay. That is called dichotomous. Okay. Mark that word further. What do you mean by trial? When you toss a coin, that is called as trial. This is one trial. Okay. So we are applying Bernoulli's trials wherein there are many number of such trials. Okay. So come to this page 245, Bernoulli's trial. Each time we toss a coin or roll a dice or perform any other experiment, we call it a trial. Usi ka third line. The outcome of any trial is independent of the outcome of any other trial. For example, if I toss a coin, we get a head or a tail. If I second time toss a coin, we get head or a tail. That does not depend on the first coin. So that is called as independent events. Okay. In each of the trials, the probability of success or failure remains constant. That is called as independent events. Such independent trials which have only two outcomes, such independent trials, we are calling, there are many number of such trials. Means मैंने एक बार coin toss नहीं किया, many number of times coins toss किया है, ठीक है? Such independent trials which has only two outcomes, okay, one will be called as a success, other will be called as a failure, is called as Bernoulli's trials. Okay, so this is the topic that we have. Bernoulli's trials, we have to learn a formula. P signifies probability of success. ठीक है? For example, when I toss a coin, अगर मैं coin का ही example लूं, मैं अगर one coin toss कर रहा हूं, तो sample space is either head or tail. ठीक है? The sample space is head or tail. मेरा समय head लाने का, मेरे को head चाहिए. So probability P is the probability, मैं एक ही coin toss कर रहा हूं. P is the probability of getting a head. How many times do we get head? One times. Out of how many number of times we are getting head? Two times. So P मतलब क्या है? Probability of success. और मेरा success कौन सा मैंने consider किया था? ये example है. मैंने success कौन सा consider किया था? Head का. तो P is the success of getting a head. Once I get a head out of two times. 1/2. Then Q is called as the probability of failure. Okay, so P is success, Q is failure. Now, what will be the answer of failure? Means जिसमें head नहीं आया. That is called as a failure. Now, how will I find it? See, since this is dichotomous. Dichotomous means there is either head or you get a tail. सिर्फ दो ही आंसर हो सकता है. या तो तुम्हारे पास head आएगा या तो tail आएगा. ये दो ही आंसर्स पॉसिबल है. Okay, यानी total probability is 1. अगर सक्सेस 1/2 है तो फेलियर क्या रहेगा? फेलियर इज 1 - P. क्योंकि वो डाइकोटोमस है, सो दिस फॉर्मूला आई कैन अप्लाई. P मतलब सक्सेस है, तो Q यानी फेलियर हो गया. तो फेलियर क्या रहेगा? 1 - P. 1 - P यानी 1 - half. आंसर इज हाफ. ठीक है? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सक्सेस एंड फेलियर. We have to first concentrate on success. Success कैसे find out करने का? तुम्हारा जो probability बोला रहेगा ना, उसको find out करेंगे. ठीक है? That is called as success. 1 minus करो, वो हो गया failure. But I am not going to toss one coin. I am going to toss 5 coins. So the same trial, this is called as a trial. Same trial is repeated many number of times. That's the reason we are learning this formula, Bernoulli's trials. Same trial, this is called as a trial, repeated 5 times. So n is equal to 5. Okay? N is equal to 5. My question is to find probability of getting
अहेड जो मेरा सक्सेस है, probability of getting ahead 3 times. This is my question. मैंने 5 times coin toss किया. See, because it was 5 times, तुम ये मत, तुम्हारा जो 10th में या 11th में जो मेथड था ना, 5 times coin toss किया तो हेड 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 टेल, ये वाला प्रोसीजर नहीं अप्लाई कर सकते बिकॉज ये बहुत सारे ट्रायल्स है, इसमें सैंपल सेट बनाते बनाते तुम्हारा जान निकल जाएगा. So you cannot apply this method. So the technique is used because it is dichotomous and the same trial is repeated 5 number of times. So we are going to learn a formula. If I want 3 times head, the formula will apply is NCX, C मतलब combination, P raised to X, Q raised to N minus X. ठीक है, binomial distribution में आ गया. Now why am I using the word binomial? If you remember 11th standard binomial expansion में हमने ऐसा ही formula learn किया था. Okay, so this Bernoulli's trial is called as binomial distribution. Okay, now formula क्या है? NCX P raised to X Q raised to N minus X. बस एक ही फर्क है, 11th के formula में N minus X था और X था, ये उल्टा है. ठीक है, तो तुमको यही याद रखना है, अभी 11th का वो दिमाग में मत रखना. Now I said I want 3 times head. So when I said 3 times head, ये x है, यानी ये क्या हो गया 3, ये हो गया 3 और ये हो गया 3. n का वैल्यू मैंने 5 टाइम्स कॉइन, 5 टाइम्स सेम ट्रायल मैंने 5 टाइम्स किया हुआ है, 5 5. p यानी सक्सेस, q यानी फेलियर. एनी ट्रबल हियर? तुम्हारा जॉब क्या है पता है? तुमको है ना n फाइंड आउट करना है. एक ही ट्रायल हाउ मेनी टाइम्स इज रिपीटेड, p फाइंड आउट करना है, p यानी सक्सेस फाइंड आउट करना है. p मिल गया तो q ऑटोमेटिकली मिल जाता है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता है, तुमको सिर्फ p पे दिमाग लगाना है, n फाइंड आउट करना है और x यानी तुम्हारा फाइंड रहेगा. ओके, लेट अस टेक अ सम. कम टू द फर्स्ट सम, एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट. Okay, a die is thrown 6 times. Now concentrate here. A die is thrown 6 times if getting an odd number. Getting an odd number. Now 6 times die throw किया है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा. Odd number, तो मेरा सक्सेस odd number का है. Can you tell me how many odd numbers are there? 3 odd numbers out of 6. यानी क्या आंसर आया 1/2. अच्छा, हर बार सक्सेस 1/2 आएगा ऐसा नहीं है, सिर्फ पिछली बार भी 1/2 आया, ये भी 1/2, ऐसा कुछ नहीं है. इट कैन बी एनी सच वैल्यू. अच्छा, एक बार सक्सेस मिल गया तो कैन यू टेल मी फेलियर क्या रहेगा? 1 minus p यानी 1 minus half. आंसर इज हाफ. सक्सेस और फेलियर दोनों मिल गया. A die is thrown 6 times. A die is thrown 6 times. Once a die is thrown is called as a trial. 6 times it is thrown. So क्या मिल गया तुमको? N. N का वैल्यू, n is equal to 6. Find the probability. First question. Find the probability of 5 success. 5 success. X is equal to 5. That is your first question. Okay. Now formula apply करते हैं. पहले मैं formula लिख रहा हूँ. Okay. N का वैल्यू, what is your n value? 6 C 5. P यानी सक्सेस 1/2 raised to x. X का वैल्यू इज 5. Q यानी फेलियर, n minus x यानी 6 minus 5. 6C5. Now if you remember your combination formula, NCR can also be written as NCN minus R. NCR is written as NCN minus R. तब करते हैं when this R value is near to n. ये NCR फाइंड आउट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास 7C3 रहा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऊपर 7 3 बार कम होएगा, नीचे 3 भी 3 बार कम होगा. दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन. इफ यू हैव नॉट रिमेंबर दिस इज द मेथड. सो कॉम्बिनेशन में ऊपर का वैल्यू जितनी बार कम होएगा ना, नीचे का वैल्यू भी उतनी बार ही कम होएगा.
but ये 5 है, which is far closer to 6. So 65 can also be written as 61. 6 minus 5 यानी 1. And 61 यानी ऊपर 6 है और नीचे 1 है, यानी आंसर is 6. तो 65 का आंसर is 6. 1 by 2 raised to 5 है, 1 by 2 raised to 1 है, यानी क्या आ गया 1 by 2 raised to 5 into 1 by 2 raised to 1. ये 2 कैंसिल कर दिया, this is 3. तो आंसर becomes 3. 2 raised to 5. 2 raised to 5 यानी 32. That becomes your first answer. Second. Now come to the second value. At least 5 success. Okay. Now what do you mean by at least 5 success? Yeah, please. You know probability, right? At least 5 success का meaning होता है probability of x is either 5 or more than 5. This is called as at least 5. So can you represent it 5 या more than 5 में क्या क्या value आएगा? Probability of x is equal to 5. 5 times odd number आना चाहिए. 6 times odd number आना चाहिए. 7 times odd number आना चाहिए. 8 times odd number आना चाहिए. बराबर है? कब तक करते जाने का? हाँ? At least 5 यानी 5 times. 5 times odd number आएगा, 6 times odd number आएगा, 7 time आएगा, 8 time आएगा. I will keep doing this. Correct है क्या नहीं? Please be fast. Answer. गलत दोगे तो भी चलेगा. Answer तो करो. क्या मिस्टेक है? तुम्हारा टोटल ट्रायल ही 6 है. तो फिर 7 और 8 नहीं आएगा. ठीक है? Now, x is equal to 5 plus x is equal to 6. Now next time onwards ना please try and answer. Okay? x is equal to 5. Now x is equal to 5 last time अभी ढूंढा था इधर. क्या था? 65 success यानी half raised to 5 failure यानी half raised to 6 minus 5 यानी 1. अभी मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ. x is equal to 6 यानी 66 half raised to 6 success raised to x failure raised to 6 minus 6 यानी 0. ठीक है? Now here to find out 65 last time ही ढूंढा था. What was 65 equal to? Once again combination में 65 because 5 is near to 6. तो 65 यानी क्या था? 61 यानी 6. Half raised to 5, half raised to 1 का मतलब 1 upon 2 raised to 5. Sorry. 1 upon 2 raised to 6. कैसे 6? 1 upon 2 raised to 5, 1 upon 2 यानी 1 upon 2 raised to 6. 66 क्या रहेगा? Now 65 का explanation किया था, तो 66 क्या रहेगा? Again this value is near to this. तो 66 यानी 60 होता है. 66 यानी 6 minus 6 becomes 0. And 60 का मतलब ये आगे आएगा ही नहीं, यानी value is 1. तो 66 यानी 1. Half raised to 6. Anything raised to 0 is 1. Anything raised to 0 is 1. तो ये क्या हो गया? Half raised to 6. दोनों में half raised to 6 is common. बचेगा क्या? 6 plus 1. 6 plus 1 यानी 7. तो आंसर is 7 upon 2 raised to 6 यानी 64. That's your answer. Now, at most maximum का मीनिंग होता है maximum 5 चलेगा, उसके नीचे चलेगा, उसके ऊपर नहीं चलेगा. यानी probability of x is less than equal to 5. तो probability of x less than equal to 5 का values क्या क्या होता है? Can anyone tell me? जैसे मैंने last time more than equal to 5 का value लिखा था 5 and 6. वैसे less than equal to 5 का values क्या क्या रहेगा? Please start. X is equal to 5. 5 and X is equal to 5. X is equal to 4. x is equal to 4. X is equal to 3 2. 2 1. and 1. बराबर? 0 भी आएगा. ठीक है? जहां पे there is no odd number, जो भी आंसर मिला वो even ही मिला है. ठीक है? No odd number. Clear with this? So 5, Yes. 4, 3, 2, 1, 0. 0 probability वाला. ठीक है? मतलब 0
कंडीशन वाला, सक्सेस वहां पे 0 कंडीशन वाला आता है, ठीक है। नाउ हियर दिस वैल्यू टू फाइंड इज टू ट्रबलसम, व्हाई, बिकॉज़ ये 2 था तो इजीली फाइंड आउट हो गया, ये इतने सारे फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है। तो कैन यू टेल मी व्हिच अदर मेथड कैन आई अप्लाई, ये भी तुमने 11th में सीखा है, समेशन 1 minus वेरी नाइस। तो Probability. प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6। इनके अलावा 0 से लेके 5 तक के अलावा बचा क्या, 6 ही बचा था ना, क्योंकि 6 बचा था तो मैंने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 लिखा है, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6। अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, क्या था, 66 हाफ रेज टू 6, half raised to 6 minus 6 यानी 0, anything raised to 0 is 1, this is also 1 यानी 1 minus 2 raised to 6 यानी 64, 64 minus 1 यानी 63 upon 64, that's your answer। n और p पे ही रहता है, इसलिए बर्नौलीज इक्वेशन इज आल्सो रिटन एज x equal to b p n comma p। This is how we represent Bernoulli's equation। x जो अपन फाइंड आउट करते हैं, बर्नौलीज का n वैल्यू एंड p वैल्यू। तुम्हारा अटेंशन हर वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ n और p पे ही रहेगा। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम रीड करोगे, ट्राई टू गेट n and p। Once you get n and p, you can solve any sum। Okay, that's the reason this is one of a pair of dice thrown 4 times। Please do remember, it's a pair of dice, ludo wala, dice thrown 4 times। So can you guess n का वैल्यू क्या है यहाँ पे? Pair of dice 2 वैल्यू है कि 4 times? 4 Very nice। A pair of die is my event, a trial you can say। हम लोग pair of die वाला sum remember we have already done 10th standard में, 1 1 से लेके 6 6 का आंसर आता है। Remember this? 1 1 1 2, this is Yes. 6 1 and 6 6, Yes, sir. ठीक है। So everyone remembers this pair of die का आंसर क्या है? So this becomes my trial। Pair of die is a trial, but the same trial is repeated 4 times। अब मैं 4 times repeat कर रहा तो मैं 4 times ऐसे concepts नहीं लिख सकता। 1 1 1 1 1 ऐसा नहीं लिख सकता। 1 1 1 1 1 1 1 1 4 बार 1 1 1 1 ही आया, तो इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं। सो हियर n का वैल्यू मिल गया, मैंने कहा सिर्फ n और p पे फोकस करो। n का वैल्यू इज 4। नॉर्मली स्टूडेंट मिसअंडरस्टैंड इट, पेयर ऑफ डाई n का वैल्यू 2 लिख देते हैं। नाउ फर्दर, इफ गेटिंग अ डबलेट, डबलेट के यहाँ पे लिखो सेम नंबर ऑन बोथ डाई। डबलेट मतलब सेम नंबर ऑन बोथ डाई, यू कैन राइट इट ओवर। Okay, if getting a doublet is considered as a success, तो मेरा सक्सेस क्या है? मैंने कहा था n और p पे ध्यान देना, n तो मिल गया, p यानी मेरा सक्सेस है। सक्सेस क्या है? Look at this sample space, सक्सेस क्या है? Yes please, what is the success? Getting a doublet। doublet यानी doublet का मतलब क्या बताया था? Same numbers on both the die। Can you tell me how many times does this happen? 6 times 6 Very times good, 6 times। How out of how many times does this happen? 36 तो ये जो मैंने ढूंढा ना, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। मुझे एक्चुअली प्रोबेबिलिटी कुछ और ढूंढनी है, पर पहले मैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहा हूँ। जो मैं 2 डाई मतलब एक ट्रायल, दिस इज माय 1 ट्रायल, मैंने एक ट्रायल का प्रोबेबिलिटी ढूंढा, फिर बाद में यही चीज को मैं 4 टाइम्स के लिए रिपीट करने वाला हूँ। That is called Bernoulli's distribution। Okay, there is 6 upon 36 and a 1 upon 6। P मिल गया। Now tell me what is Q? Q is 1 minus P यानी 1 minus 1 upon 6 यानी 5 by 6। 6 minus 1 यानी 5 by 6। एक बार P मिल गया तो Q बहुत इजीली मिल जाता है, so दिमाग नहीं लगाना पड़ता। Next, find the probability of 2 success। Probability of 2 सक्सेस बोला, यानी क्या बोला हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 बोला, ठीक है। आउट ऑफ दिस 2 बार ऐसा होना चाहिए, ठीक है, 4 ट्रायल्स में से। ओके, तो 4 ट्रायल्स मतलब क्या हो गया? इफ तुम लोग फ्लूडो तो खेलते रहोगे,
तुमने एक बार दो डाई फेंका, दूसरी बार दो डाई फेंका, तीसरी बार दो डाई फेंका, चौथी बार दो डाई फेंका, यानी 4 ट्रायल्स। एक ही चीज तुमने 4 बार किया, उसमें से 2 बार डबलेट आया। डबलेट यानी 2 बार 1-1 या 2-2 या 3-3 या 4-4 या 5-5 ऐसे नंबर्स आ गए। ठीक है, सो दैट इज योर क्वेश्चन। सो 2 times we get success. What is your formula? NCX p raised to x q raised to n minus x. So can you tell me क्या आंसर आएगा? n का वैल्यू 4c, x का वैल्यू 2, p का वैल्यू 1/6 raised to x, x का वैल्यू 2, q का वैल्यू 5/6 raised to n minus x, n minus n x यानी 4 minus 2, 4 minus 2 यानी 2। Now, do you remember मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते बताया था? What is the method? नीचे 2 है तो ऊपर का नंबर 2 बार कम होगा। 4 into 3 upon 2 into 1, 1/6 raised to 2 है, 5/6 raised to 2 है, तो 5 raised to 2 हो गया और 6 raised to 4 हो गया। कैसे 6 raised to 4? ये 6 raised to 2 है, ये 6 raised to 2 है, यानी 6 raised to 4 हो गया। ठीक है, नाउ हियर 2 2s यानी ये 6 हो गया, तो एक 6 इधर एक 6 से कैंसिल हो गया, तो 6 क्यूब, 5 स्क्वायर यानी 25, 6 क्यूब यानी 216। ठीक है, that becomes your answer. There are 5% defective items in a large bulk of items. What is the probability that a sample of 10 items will include not more than one defective item? Okay. Now, there are 5% defective items. Whenever I say there is a 10% chance of you passing a particular exam. So what does that 10% means? वो 10% मतलब क्या होता है? 10/100. 10/100. या मतलब होता क्या है वो? Probability. Probability रहता है। The probability, chances, probability यानी chances of you clearing that exam is 10%. So मैंने अगर कोई भी sample में से एक प्रोडक्ट उठाया तो उसका डिफेक्टिव होने का चांस क्या है? So there is a 5% chance of it becoming a defective. अब ये डिफेक्टिव है तो इसको मैं सक्सेस लूं या फेलियर लूं? Now this thought you have to give. Tell me, look at the question and tell me. ये जो 5% है, ये 5% मेरा प्रोबेबिलिटी है, समझ में आ गया। 5% प्रोबेबिलिटी है, ये क्लियर हो गया, पर ये 5% मेरा सक्सेस है कि फेलियर है? दैट यू हैव टू थिंक। हाउ टू थिंक? 5% डिफेक्टिव बोला है, तुम्हारा फाइंड चेक करो, अगर फाइंड भी डिफेक्टिव सम का ही है ना तो वही मेरा सक्सेस है। मतलब मैं सक्सेस किसको ले रहा हूं? जो डिफेक्टिव है उसको सक्सेस ले रहा हूं, क्योंकि मेरा फाइंड डिफेक्टिव है। Let's see, look at the question. 5% are defective in a large bulk of items. What is the probability that a sample of 10 items will include not more than one defective? The word used is defective. क्योंकि मेरे को probability defective का ही ढूंढना है, so what I will do is I will take success as 5%. क्योंकि मेरा सम डिफेक्टिव सम के बारे में ही है, क्योंकि सम डिफेक्टिव के बारे में, तो मैंने डिफेक्टिव को ही सक्सेस लिया। यानी 5/100 यू कैन डिवाइड इट, मेक इट इन रेशियो और यू कैन पुट इट इन डेसिमल पॉइंट, जो चॉइस तुम्हारे पास है। तुम रेशियो में लिखोगे तो क्या आएगा? 1/20 और ऐसे लिखोगे तो 0.05। दिस इज सक्सेस। तो फेलियर क्या आ गया? 1 minus p, 1 minus 0.05। नाउ टेल मी क्या आंसर आएगा? 1 minus 0.05, 0.95. 0.95. Okay. Now, how many times am I taking a sample? तो मैंने एक सैंपल निकाला, उसका डिफेक्टिव होने का चांस 5% है। ठीक है, मैंने एक सैंपल निकाला, तो ऐसे ही सैंपल में कितनी बार निकाल रहा हूं? 10 times. 10 times. So n is equal to 10 becomes, तो एक बार सैंपल निकालना is my trial. And the same trial I am repeating it 10 times. So n is equal to 10. मैंने कहा था तुम्हारा attention p और n पे ज्यादा रहना चाहिए. Once you get that, it's far simple. Question is to find the probability of items will include not more than one defective item.
तो मेरे को प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड आउट करना है? नॉट मोर देन 1. What do you mean by the word not more than 1? मैक्सिमम क्या? Not more than यानी उससे ज्यादा नहीं हो सकता. So not more than यानी क्या हो गया? At most. So please write it in a textbook. Not more than लिखा है ना, उसके ऊपर पेंसिल से लिख लो at most. At most 1. Okay. यानी मैक्सिमम. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये स्मॉल p लिखना है, ये कैपिटल p. प्रोबेबिलिटी ऑफ x नॉट मोर देन 1 यानी एटमोस्ट. अपन एटलीस्ट और एटमोस्ट पहले डिस्कस किया हुआ है. एटमोस्ट 1 या 1 से कम चलेगा. 1 या 1 से कम चलने वाला है. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, टेल मी, 1 या 1 से कम यानी क्या होता है? x इज इक्वल टू 1 और क्या होगा? x इज इक्वल टू 0. 0. x इज इक्वल टू 1 यानी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. NCR 10C1 1 P सक्सेस 0.05 raised to 1 failure 0.95 raised to 10 minus 1 plus x is equal to 0 यानी 10C0 success 0.05 raised to 0.95 raised to 10 minus 1 10 minus 0. ये ना डेसिमल में कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. आई बेटर टेक इट इन रेशियो ओनली. दिस इज 1/20. तो कैन यू टेल मी ये क्या आएगा? 1 minus 1/20 यानी 19/20. 10C1 नीचे 1 लिखा है तो 10C1 यानी 10 हो गया. 0.05 यानी 1/20. 0.95 यानी 19/20 raised to 9. 10 minus 1 यानी 9. 10C0, remember just we have discussed this before. 10C0 यानी 1. Anything raised to 0 यानी 1. 0.95 raised to 0.95 यानी 19/20 raised to 9. Now ये 0 कैंसिल हो गया. ये 10 minus 0 is 10. ये 0 कैंसिल हो गया. 1/2 आया. If you notice it, दोनों में 19/20 raised to 9 कॉमन आ रहा है. 19/20 raised to 9 कॉमन आ रहा है. तो बचेगा क्या? इधर बचेगा 1/2 प्लस इधर क्या बचेगा? 19/20. वेरी नाइस. क्योंकि 19/20 raised to 9 कॉमन आ गया. If I do LCM, common denominator is 20. LCM is 20. 10 plus 19 यानी 29/20. 19/20 raised to 9. That's your answer. इसको ऐसे ही छोड़ो. ठीक है. टेक्स्ट बुक में आई सपोज ऐसा लिखो. ऐसा ही है, बस ये 20 और 20 raised to 9 यानी 20 raised to 10 लिखा हुआ. ठीक है. 5 cards are drawn successfully with replacement. Now अच्छा ये कार्ड वाले सब में देने का. फॉर एग्जांपल कार्ड्स में मैंने एक कार्ड निकाला. ठीक है. सो दैट बिकम्स माय वन ट्रायल. फिर मैंने दूसरा कार्ड निकाला. आई विल नॉट से इट टू बी सेकंड ट्रायल. प्रॉब्लम क्या हो गया? सेकंड कार्ड निकालते वक्त मैंने फर्स्ट कार्ड कम हो गया, यानी मेरा सैंपल स्पेस कम हो गया. स्टार्टिंग में मेरा सैंपल स्पेस 52 कार्ड्स था. पहला कार्ड निकाला. सेकंड टाइम जब कार्ड निकाल रहा हूं ना तभी सैंपल स्पेस 51 हो गया. सो दैट्स द रीजन मैं इसको है ना बर्नौलीज ट्रायल में नहीं कंसिडर कर सकता, पर मैं कार्ड्स वाले सब को बर्नौलीज ट्रायल में कब कंसिडर कर सकता हूं? मैंने एक कार्ड निकाला, देखा, मतलब 52 में से एक कार्ड निकाला, देखा, फिर वापस रख दिया. रिप्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट. मैंने उसको वापस रख दिया एंड देन आई रिमूव द सेकंड कार्ड. Then it is called as Bernoulli's trial. Why? Because now the events have become independent events. कैसे independent हुआ? पहला कार्ड निकाला, सैंपल स्पेस 52 था.
वापस रखा, दूसरा कार्ड निकाला, दूसरा कार्ड निकालते वक्त वापस सैंपल स्पेस कितना आ गया 52. So it is called as independent. Now please look at the question carefully before you start. 5 cards are drawn successfully with replacement. With replacement. So tell me, ये Bernoulli styles है कि नहीं है? Yes, these are Bernoulli styles. Okay. So 5 cards are drawn successfully with replacement. मतलब मैं जो एक कार्ड ड्रॉ कर रहा हूं ना वो मेरा एक ट्रायल है. 5 cards are drawn with replacement. निकाला देखा रख दिया, निकाला देखा रख दिया. That is 5 trials हो गए. तो तुमको किसका वैल्यू मिल गया? N. N का वैल्यू. N का वैल्यू is 5. Next. Find the probability. अच्छा, ये 5 cards are drawn successfully with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that all 5 cards are spades. So मेरा success क्या आएगा? Success यानी small p लिखना. Tell me. यहाँ पे success find out करना मे भी थोड़ा tricky हो गया. Success क्या है? 5/52. Success क्या है? Yes, 5 please. cards are spade. Getting spade. All are spades लिखा, right? क्योंकि सक्सेस स्टार्टिंग में नहीं लिखा है, वो इसमें से ढूंढना पड़ेगा. तो P का वैल्यू क्या हो गया? स्पेड का. स्पेड यानी व्हाट डू यू मीन बाय स्पेड? वो पत्ता. यस, पत्ती. ठीक है. सो व्हाट इज योर आंसर? अभी एक ट्रायल में का फाइंड आउट कर रहा है. एक ट्रायल यानी जब मैं एक ही कार्ड निकाल रहा था, तो एक ट्रायल में स्पेड कितनी बार आता है? 13 टाइम्स आउट ऑफ टोटल 52. यानी आंसर इज 1/4. तो Q क्या आएगा? 1 माइनस P यानी 1 माइनस 1/4 यानी 4 माइनस 1 यानी 3/4. N मालूम है, P मालूम है, Q मालूम है. मुझे सबका सब स्पेड चाहिए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ X. 5 कार्ड निकाला है, पांचों का पांचों स्पेड चाहिए. X is equal to 5. ठीक है. तो फॉर्मूला अप्लाई करो. N 5C5 P 1/4 raised to 5 Q 3/4 raised to N minus X यानी 5 minus 5. 5C5 यानी 0, 5C0 यानी 1. Anything raised to 0 यानी 1. तो बचा क्या? 1/4 raised to 5. That's your answer. इसको बहुत बड़ा कैलकुलेशन है तो रहने दो. Next. Only 3 cards are spade. Only 3 cards are spade. ठीक है. So probability of X is equal to, tell me, क्या आएगा? 3. X is equal to 3. ठीक है. Okay. Now third question. क्या लिखा है third question? None is spade. So tell me, none is spade मतलब X is equal to 0. 0. X is equal to 0. ठीक है. कोई भी स्पेड नहीं आ रहा यानी 5C0 सक्सेस इज 1/4 raised to 0. Failure is 3/4 raised to 5 minus 0. 0 यानी 1. Anything raised to 0 यानी 1. 3/4 raised to 5. That's your answer. 3/4 raised to 5. I hope this is easy. The probability that a bulb produced by a factory will fuse after 150 days of use is 0.05. Find the probability that out of 5 such bulbs, none, not more than one, more than one, at least one will fuse after 150 days. Look at this and tell me. मेरा सम बल्ब फ्यूज होना यानी खराब होना उसके ऊपर है या बल्ब वर्किंग रखना आफ्टर 150 days also it should be working उसके ऊपर है. किसको सक्सेस लो? फ्यूज होना. फ्यूज होना बिकॉज मेरा क्वेश्चन रीड करने का probability that out of 5 such bulbs none not more than one will fuse. मेरे क्वेश्चन में फ्यूज वर्ड आ रहा है यानी मेरा सक्सेस इज बल्ब इज गेटिंग फ्यूज. जैसे लास्ट टाइम हमने डिफेक्टिव इज माय सक्सेस. ठीक है. वैसे इसमें फ्यूज्ड बल्ब इज माय सक्सेस. सो लुक एट द क्वेश्चन एंड टेल मी पी का वैल्यू क्या लिखा है? $0.05.
यस वेरी नाइस 0.05 याद रखना परसेंटेज यानी प्रोबेबिलिटी होता है इसको भी प्रोबेबिलिटी डेसिमल्स में जो लिखा है ना 1 से नीचे प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1 ठीक है तो 0.05 भी प्रोबेबिलिटी हो गया सो 0.05 यानी 5/100 यानी 1/20 सो Q फेलियर 1 minus P यानी 19/20 now probability that 5 such bulb ये एक बल्ब का प्रोबेबिलिटी है यानी एक ट्रायल 5 such bulbs तो ये क्या हो गया n is equal to 5. N is equal to n is equal to 5 first question probability that none fuse यानी x is equal to 0 second question not more than 1 can you tell me not more than अभी हमने डिस्कस किया था not more than यानी X is less than equal to 0. less than yes at most यानी less than equal to 1 कैसे ढूंढेंगे less than equal to 1 probability of x is equal to 0 plus probability of x is equal to 1 third more than 1 यानी probability of x is More than equal to. more than 1 more than 1 में equal to नहीं आएगा clearly statement specified है more than 1 equal to और more than 1 नहीं बोला है ठीक है more than 1 बोला यानी equal to 1 नहीं आएगा तो probability equal to 1 नहीं आएगा यानी x is equal to 2 x is equal to 3 x is equal to 4 x is equal to 5 ये सब आ गया अब ये इतना अगर ढूंढना डिफिकल्ट लग रहा है तो इसके अलावा कौन सा बचा है n is equal to 5 लास्ट उधर तक ही आएगा इसके अलावा बचा कौन सा है 1 other than this 1 बचा है One. और 0 बचा है then I will write 1 minus probability of x is equal to 0 minus probability of x is equal to 1 तुमको अगर ये सॉल्व करना इजी लग रहा है तो ये करो नहीं लग रहा है तो ये इजी रहेगा ठीक है वो तुम्हारा चॉइस है ऐसे ढूंढना है कि ऐसे ढूंढना है नेक्स्ट फाइंड प्लीज at least one what do you mean by the word at least one minimum or more than more than equal to अब more than equal to आया अब more than equal to का मतलब वापस x is equal to 1 से लेके x is equal to 5 ये वाला तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा है तो इसके लिए क्या करेंगे एटलीस्ट वर्ड के लिए हमेशा एटलीस्ट वर्ड के लिए हमेशा क्या करने का 1 माइनस नन 1 माइनस नन ये वर्ड याद रखना 1 माइनस नन यानी x is equal to 0 ठीक है ये हमेशा इजी रहेगा सो दिस विल बी इजियर फॉर यू टू फाइंड ओके नेक्स्ट प्लीज okay a bag contains 10 balls each marked with one of the digits 0 to 9 if 4 balls are drawn successfully with replacement now notice that 4 balls are drawn successfully with replacement ठीक है यानी सैंपल स्पेस सेम रहेगा मतलब वो ट्रायल है कितने ट्रायल्स हो गए एक ट्रायल दो ट्रायल कितना ट्रायल्स हो गया 10 4 ट्रायल्स हो गए यानी n का वैल्यू इज 4 मैंने कहा सिर्फ अपने को n और p पे ही अटेंशन देना है ये सब पे what is the probability that none is marked with digit 0 तो अपना सक्सेस क्या है सक्सेस क्या है 1/10. जो मैं बॉल पिक कर रहा हूं ना That must be 0. यस बस इस सब में थोड़ा कंफ्यूजन फीड ढूंढने में था ठीक है बिकॉज मुझे क्या फाइंड आउट करने नहीं मालूम था किस चीज का प्रोबेबिलिटी वो नहीं पता था तो जो 0 बॉल निकाल रहे हैं ना वो डिजिट 0 वाला वो मेरा कंफ्यूजन था वो सक्सेस है सो 0 to 9 यानी 10 बॉल्स हो गए उसमें से 0 वाला बॉल कितनी बार है 1/10 अगर p 1/10 है तो q क्या आएगा 1 minus p यानी 1 minus 1/10 9/10 n और p मिल गया सब मिल जाएगा अब उन्होंने प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड आउट करने बोला है प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद 0 यानी x is equal to क्या चाहिए उनको 0 नन इज मार्क्ड विद 0 ठीक है सो फॉर्मूला इज n का वैल्यू इज 4 cx x का वैल्यू इज 0 सक्सेस फेलियर 4 minus 0 इधर लगेगा ठीक है
4C0 नीचे 0 यानी 1 हो गया, एनीथिंग रेज टू 0 यानी 1 हो गया, 4 minus 0 यानी 4 हो गया, so this becomes 9/4, 10 raised to 4. Next please. Next question. On a multiple choice examination with 3 possible answers for each of the 5 questions, what is the probability that a candidate would get 4 or more correct answer just by guessing? Okay, now this is quite interesting. On a multiple choice examination with 3 possibilities. ठीक है, तुम एक सम अटेंड कर रहे हो, तुम्हारे पास 3 पॉसिबिलिटी है, तीनों करेक्ट है क्या? नहीं। एक ही करेक्ट आएगा ना। तो तुम्हारा एक सम जो है ना, उसमें जो 3 पॉसिबिलिटी है ना, ये तुम्हारा सक्सेस का फॉर्मूला, यानी क्या आएगा? ओनली 1 विल बी करेक्ट। समझा? तो सम इज अबाउट करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर, मोर 4 और मोर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। सम इज अबाउट करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इसमें कितनी बार आ रहा है? 1. 1. तो P यानी सक्सेस ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर इन 1 ट्रायल। नाउ ये ट्रायल यानी क्या है? दिस वन सम इज योर 1 ट्रायल। ये एक सम तुम्हारा एक ट्रायल है, उसमें करेक्ट आंसर बिकम्स योर सक्सेस। अब क्लियर हो गया? तो P का वैल्यू क्या आएगा? नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? 1/3. कितना? 1/3. जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा। 1/3। क्यों 1/3? तुम्हारा 3 में से एक करेक्ट आंसर है, ठीक है? तो 1/3 बिकम्स योर सक्सेस। तो ऑब्वियसली फेलियर क्या आएगा? 1 - 1/3 यानी 2/3। अगर क्वेश्चन मेरा रॉन्ग आंसर का होता ना, तो ये मेरा सक्सेस बनता था। 2 बार 3 में से 2 ऑप्शन गलत है और एक करेक्ट है। ओके ना, on a multiple choice examination with 3 possible answers, normally 4 होते हैं ना, इसमें 3 वाला सम है, ठीक है? For each of the 5 questions. Now 5 questions. Now what is that 5 questions? n का वैल्यू इज 5। कैसे n का वैल्यू 5 आया? ये एक क्वेश्चन है ना, एक ट्रायल है, ऐसे 5 क्वेश्चंस है, यानी 5 ट्रायल। एक ट्रायल का सक्सेस और फेलियर मालूम है, सिमिलर 5 ट्रायल्स आर देयर, n is equal to 5. Question is, what is the probability that a candidate would get 4 or more correct answers? Yes please, 4 or more correct answer। n का वैल्यू 5 है, यानी more than 4 or more than 4, यानी x is more than equal to 4। more than equal to 4 का मतलब क्या हो गया? x is equal to 4 plus probability of x is equal to 5। उससे ज्यादा नहीं आ सकता, n is 5 ही है, ठीक है? So 4 यानी n c 4 सक्सेस, 1/3 raised to 4 फेलियर, 2/3 raised to, ये वाला वैल्यू है ना, ये इधर लिखने का, ये ट्रिक याद रखना, ये वैल्यू का सबट्रैक्शन इधर लिखने का, प्लस x is equal to 5, क्या आएगा? 5c5 सक्सेस, 1/3 raised to 5 फेलियर, 1 फेलियर is 2/3 raised to 5 - 5। 5c4 लास्ट टाइम ही बताया था, ये 4 है, नियर टू दिस, यानी 5c1 हो गया। 5c4 यानी 5c1, 5 - 4 1 हो गया। आंसर इज 5। वेरी गुड। 1/3 raised to 4 है एंड 2/3 raised to 1 है, तो ऊपर में 2 raised to 1 ही आया, 2, और नीचे 3 raised to 4 और 3 यानी 3 raised to 5 आया। 3 raised to 4 और 3 यानी 3 raised to 5। 5c5 यानी 5c0 यानी 1। 1/3 raised to 5, anything raised to 0 is 1। अब दोनों में कॉमन निकालते हैं, 1/3 raised to 5 is कॉमन, इधर बचा 10 plus 1, this is 10 plus 1 यानी 11। That's it। म्यूट करना प्लीज। x बर्नॉल इज n, p, ठीक है? फर्स्ट n का वैल्यू 10 दिया है,
p का वैल्यू 0.4 दिया है. Now the question is to find expectation of x, and the second question is to find variance of x. Okay. Now ये statistics का terms है, expectation and variance. बस ये simple दो formulas apply कर देगा. ठीक है. Expectation का मतलब ही होता है mean. मैं यहीं पे explain कर रहा हूँ. Sum के साथ ही explain कर रहा हूँ. Mean. Statistics में mean यानी average. Average mu is expectation. ये सब चीज का मतलब mean ही होता है. ठीक है. Is given by formula NP. NP is the formula for expectation of x. ठीक है. And variance का formula आता है NPQ. ठीक है. Variance यानी NPQ. और standard deviation of x का formula आता है square root of variance. तो formula अपने पास दो ही है. तीसरा वाला सिर्फ square root कर देगा. ठीक है. Now NP. Can you tell me NP यानी क्या आएगा? 10 into 0.4 यानी क्या आंसर आया? 4. NPQ, what is N? 10. P का वैल्यू 0.4. Q का वैल्यू क्या आएगा? N और P मालूम है. Q is 1 minus P. 1 minus 0.4 यानी 0.6. 6 4s are 24. दो नंबर पहले 6 4s are 24 into 0 240. 2 नंबर पहले डेसिमल पॉइंट यानी 2 पॉइंट. मतलब एकदम पपलू समय है, कुछ है ही नहीं. स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा नहीं इसलिए मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया. अगर स्टैंडर्ड डिवीजन पूछते तो आंसर आता था स्क्वायर रूट ऑफ 2 पॉइंट. ठीक है. लेट्स टेक द नेक्स्ट वन. सेकंड सम में इफ p is 0.6, चेक करो साइड में लिखा है सेकंड सम. p का वैल्यू इज 0.6. expected value of x is 6. My first question is to find n. Expected value मालूम है ना? What is expected value equal to np? ये x पता है 6, n p का वैल्यू है 0.6. What is n is equal to 6 upon 0.6. डेसिमल निकाल दोगे तो n is equal to 10. n मालूम है, p मालूम है. अब जो भी पूछा है ढूंढ सकते हैं. n से पहला आंसर n था, अब दूसरा आंसर वेरिएंस पूछा है. Variance of x is NPQ. 10. P का वैल्यू 0.6, Q का वैल्यू 0.4. ये लास्ट सम ही है 2 पॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट सेम है थर्ड एंड फोर्थ. ओके, आई थिंक यू कैन डू दैट. ओके. स्टैंडर्ड डिविएशन क्या करने का है? स्क्वायर. इजी है.